Yes. Very good. For a particle moving in a straight line, the xt 4 gap meters. by the given shown in the figure. Find the velocity of the particle at a time t is equals to 1 second and t is equals to 4 seconds, and also the sketch vt graph. My graphs बता से time पे I told you very clearly about this one, isn't it? Now देखिए right now if I am trying to take the graph from, ये हो गया मेरे पास x and this one is nothing but t. From 0 to 2 seconds it is a straight line beta, isn't it? From 0 to 2 it is a straight line, it is making an angle of alpha. Whether you go at 0, 0.5, yeah, maybe 0.1, 0.2, or this one is 1 and this one is nothing but 2. That means here is somewhere here 1. It is a straight line ना बेटा. ये हो गया ये मान के चलो, isn't it? So ये हो गया मान के चलो ये, और ये हो गया मान के चलो b. वो to a is a straight line बेटा, यानी t is equals to 0 to t is equals to 2 seconds बेटा. t is equals 0 to t is equals to 2 seconds. Slope क्या है? Constant है. So slope is nothing but equal to how much for me? Tan alpha. Tan alpha is equals to y by x. Y value कितनी है मेरे पास? 8. X value कितनी है? 2. So that will become how much for me? 4. So that will give me what? Velocity. So velocity हो गया मेरे पास 4 meter per second. आया सभी को ये? कल ही कराया था मैंने. Yes, sir. Vertical tan theta will always gives me what? Velocity. So ये आ गया मेरे को 4 meter per second, यानी अगर 1 सेकंड के पास भी पूछो तो वही आंसर है, 0.5 सेकंड के पास भी पूछो तो क्या वही आंसर होगा? Yeah. या 1.2 के पास? Yes. So up to 0 से लेके Same. 0 constant to तक same. isn't it? Because alpha value is here is right now lesser than 90 degrees. तो slope कभी भी क्या होगा बताया था मैंने आप लोग को? Positive. Slope will be positive. Clear है? Yes, sir. चलो उसके Yes, sir. बाद ट्राई करो एक बार. नेक्स्ट वाला ये से लेके बी तक जा रहे हो, ग्राफ ऐसा आ जाएगा आपका. यहाँ पर ये है और यहाँ पर बी है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर एंगल दे रहा है बीटा. ये हो गया ये और ये हो गया बीटा, ठीक है ना? बीटा वैल्यू क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं. सो टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड से लेके लिख रहा हूं मैं बेसिकली. t is equals to 2 seconds to t is equals to 6 seconds तक. बताओ जल्दी क्या हो जाएगा? स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट? tan बीटा. पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि जो एंगल आ रहा है ग्रेटर देन 180 Greater than. so this will become for me negative tan beta, यानी that will become for me minus tan beta value will become how much for me right now? यहाँ से यहाँ तक ये y है डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 6, तो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हुई? 4. 4. ये हो गया 8, तो ये हो गया कितना मेरे पास? -8 डिवाइडेड बाई 4, यानी ये हो गया -2 मीटर पर सेकेंड. आ गया? Yes, sir. 2.2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, यानी 2 से लेकर 6 तक कहीं पर भी हो द स्लोप का हम लोग को नेगेटिव आ रहा है, तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, यानी -2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? Yes, sir. Now, we need to draw what graph? VT graph. VT graph from where? XT graph. ठीक है ना? तो देखो कैसे ट्राई कर सकते हैं. 0 to 2. Slope 0. Straight line. बताओ जल्दी से. ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम. सो 0 से 2 सेकेंड तक 0, 1, 2. 4 meters per 4 meters. 1, 2, 3, 4. यहाँ पर कहीं पर 4 आ रहा, तो यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो ये अपने पास स्ट्रेट लाइन आ गया. आया? Yes, sir. देन 2 सेकेंड -2 2 meters. 6 सेकेंड कितना है मेरे पास? -2 meters. -2, यानी -1 और ये हो गया -2. -2. तो नीचे तक आ जाएगा यहाँ पर तक, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो ये जो आ जाएगा ऐसा. बात समझ में आई?
Yes, sir. तो अगर xt का ग्राफ दिया Sir. नीड टू कैलकुलेट vt ग्राफ तो कर सकता हूँ ना? Yes, Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट वाला जाते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस योर टाइम का ग्राफ यानी vt ग्राफ। अरे आप लोग वेक्टर्स एग्जाम लिखे हैं? Yes, sir. Yes, sir. आए कुछ भी करने? yes, sir. Yes, sir. Easy, sir. Yes, sir. Easy, sir. मार्क्स आ गए? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ चलते हैं। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा बेटा, कोई बोल सकता है क्या? Slope give acceleration. Acceleration. Slow. The slope of your vt graph, the slope of your vt graph gives me what? Acceleration. Acceleration. Area gives displacement. Yeah, Displacement. isn't it? Formula क्या था? A is equals to dv by dt. dt. So dv by dt क्या बोलते हैं हम लोग? Slope of your vt. ठीक है ना? That is nothing but m. That is nothing but your tan theta. ठीक है ना? Yes, sir. So slope of your vt graph will always gives me what? Acceleration. तो अगर मैं इसको ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर टाइम, ठीक है? अगर ऐसा है स्ट्रेट लाइन तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? Constant. अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, और एक मार देता हूँ यहाँ पर, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा? कल मैंने पूरे करवाए थे आपको, एक ही उसमें पूरे लिखा हूँ बेसिकली, तो बताओ जल्दी जल्दी से क्या होगा। इसमें एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। Constant. स्ट्रेट लाइन हो गया तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? जीरो। Zero. स्माइलिंग फेस कौन सी है, सैड फेस कौन सी है? ऊपर की side. ऊपर वाला सैड है यानी ऊपर वाला एक्सीलरेशन, side है, नीचे वाला स्माइली। या एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग होगा और यहाँ पर एक्सीलरेशन Increasing. बात क्लियर है? Yes, sir. इसके अंदर ही एक छोटा सा नोट डाल दो, द एरिया ऑफ VT graph from T1 to T2 gives displacement and distance. Gives the displacement and distance. Distance. Okay. For displacement, area above the time axis we consider as positive beta, and area below the time axis we take it as of your negative. Negative. ठीक है ना? For displacement above time axis t axis and below t axis बताओ क्या क्या देगा? अबाउट टी एक्सेस पॉजिटिव लोगे, बिलो टी एक्सेस लोगे तो नेगेटिव लोगे, ठीक है ना? Yes, sir. फॉर डिस्टेंस बेटा बता सकता है क्या? Both positive. बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता Yes. ऊपर है क्या नीचे है। सो फॉर डिस्टेंस ऑल Both एरियाज positive. आर पॉजिटिव, ठीक है ना? Yes, sir. रिकॉर्ड हो रहा है ना बेटा? Yes, sir. चलो, सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? v is equals to dx by over dt। तो इसमें से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? dx is equals to v into dt। So on integrating on both the sides, on integrating
both sides and integrating both sides. Integral of your dx will be equal to, from limits मान के चलो x1 से x2, integral of v into dt. Integral of dx is nothing but what for me, or x. That means that may be a distance or displacement. x2 minus x1. Distance or if it is your displacement, depend करता है, is equals to what? Area of your VT graph. So area of VT graph कभी भी क्या देगा बेटा? Distance or displacement. Displacement. Distance or displacement part of relation. अब इंटीग्रेशन में भी बताया था मैंने, आप लोग याद है कि नहीं है कि ये अगर मेरे पास वेलोसिटी है और ये मेरे पास टाइम है, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी ऐसा ले रहा हूँ बेसिकली, तो मान के चलो यहाँ से यहाँ तक का इसका हो गया टाइम t1 और यहाँ से यहाँ तक हो गया टाइम ऑफ योर t2. इसमें जो एरिया पड़ रहा है बेसिकली, ये जो भी एरिया इसके अंदर आ रहा है, सो दैट विल गिव मी व्हाट राइट नाउ फॉर मी, area will be equal to area Distance equals or to displacement. displacement from what, t1 to t2. T2. ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो ऊपर है तो पॉजिटिव ले लो, नीचे रहता है नेगेटिव, और डिस्टेंस के लिए दोनों भी अपने पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. क्लियर है? Positive. Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट वन भी कर लेते हैं यहीं पर ही. एक्सिलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. एक्सिलरेशन वर्सेस योर टाइम ग्राफ यानी एटी ग्राफ. एटी ग्राफ कोई बोल सकता है क्या? एरिया ऑफ एटी ग्राफ विल गिव मी Area. व्हाट बेटा? Change in velocity. Area of AT graph, very good. Area of AT graph gives me change in velocity, Velocity. but not velocity. Last time भी बताया था मैंने आप लोग को ये. तो difference क्या है सर? क्या बोले? Difference क्या है सर? Velocity और change और velocity. Change in velocity Final minus initial. हो रहा है ना. खाली अच्छा. velocity मतलब एक particular instantaneous दे देगा वो, Oh, yes sir. isn't it? तो acceleration का फॉर्मूला क्या है? dv A by is dt. equals dv to by dt. dv by dt. A is equals to dv by dt. यानी dv अगर लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a into dt. Integrating on both these sides. Integrating on both sides. तो क्या हो जाएगा देखो, ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ योर dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर a into योर dt. लिमिट हो गया इसका v1, ये हो गया v2, और ये हो गया टाइम t1 और ये हो गया टाइम t2. सो इंटीग्रल ऑफ dv इज नथिंग बट v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो, सो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एरिया ऑफ योर AT ग्राफ. ठीक है ना. सो ये v2 माइनस v1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? Area of integral. So v2 minus v1 is nothing but what for me? Change in velocity. Change in velocity. So area under acceleration versus time will always gives me what? Change in velocity. यानी अगर ग्राफ मैं ऐसा लिख रहा हूँ, your acceleration versus your time, ग्राफ जैसा भी आ जाए, यहाँ पर मान के चलो t1 है और यहाँ पर मान के चलो t2 है. So whatever the area is being enclosed in that one, area under acceleration versus time graph will always gives me what? Velocity part of relation. Clear है सभी को? Clear है? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन देखो बेटा इसका. A particle starts from rest. A
particle starts from rest. First of all, its acceleration A versus time t is shown in figure. So the maximum speed of the particle will be the maximum speed of particle will be ठीक है. This is the graph given for us. ये हो गया टाइम इन सेकेंड्स और ये हो गया एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ग्राफ जो दे रखा है ऐसा दे रखा है. और यहाँ पर टाइम है 11 सेकेंड्स और यहाँ पर एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलो ट्राई करो जल्दी से. Particle starts from rest, beta. Particle is starting from the rest. आ गया. $55, sir. Exactly 55. Yes, sir. 55. 55 होगा ना बेटा? Yes, sir. 50. Yes, sir. How many of you have got it? कौन सा ग्राफ है देखो? 80. Area under. 80 ग्राफ है ना, अभी तो 80 बोला graph. मैंने. बस एरिया ऑफ 80 ग्राफ क्या देगा? चार मीनार. Change in velocity. Area of 80 graph gives me what? Change in velocity. Velocity. यानी हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, वो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल. सो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू लेंथ कितना है? 11 into 10. 11 into 10. 10. That is equals to. 55. So ये कितना होगा? v फाइनल कितना होगा? v फाइनल मतलब क्या? at 11 seconds minus this is at 0 seconds. यानी v at 11 seconds मान के चल रहा हूँ, v at 0 second है v, यानी हो जाएगा v. तो ये कितना हो जाएगा? 55. तो v is equals to 55 meter per second. निकला सभी को? Yes, sir. Yes, sir. आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ बेटा. अपन चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी भी लिख सकते हैं ना? हाँ डेल्टा वी क्यों लिख रहे हैं ना? डेल्टा वी मतलब क्या? v फाइनल माइनस v इनिशियल. यस सर. तो v इनिशियल कितना था मेरे पास? 0 और v फाइनल कितना था? 11 सेकंड्स. 0 से जा रहे हैं ना आप. जब 0 पे था तो एक्सेलरेशन कितना था? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है ना? 11 सेकंड के पास वेलोसिटी कितनी थी? कितनी आई? 55 मीटर पर सेकंड. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर. A particle
a particle is moving in a straight line. So its VT graph in different cases are been given beta. Find the displacement and distance. Find displacement and distance from given interval. What do you make in given intervals? In given intervals for following cases. ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बता दो. पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बताना है. फर्स्ट वाला देखो ग्राफ इस तरह से दे रखा है. ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. तो ग्राफ जो है ना इस तरह से, ठीक है. ये हो गया 5, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 0 और ये हो गया मेरे पास 10. ओके. t is equals to 0 से लेके और दिस वन t is equals to 0 to t is equals to 10 seconds. 50. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना. 50. वेरी गुड. या नंबर 50 sir. नेक्स्ट वन. ये हो गया 0. ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ. ये ऐसा हो गया. ये 5, ये 8, 0 और यहाँ पर 10. सो दिस वन इज ऑल्सो योर वेलोसिटी वर्सेस योर टाइम. और यहाँ पर हो गया -6. कहाँ से कहाँ तक लोगे? पहले t इज इक्वल्स टू 0 to t is equals to 5 seconds. Then from t is equals to 5 to t is equals to your 8 seconds. So t is equals to 0 to 8 seconds के लिए बताओ. ठीक है ना. Total time is 0 to 8 seconds. Number C. हो गया 10, ये हो गया 6, ये हो गया 3, दिस वन इज -3, दिस वन इज 0 और ये हो गया 3 और ये हो गया 5. दिस वन इज ऑल्सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. t is equals to 0 to t is equals to 10 seconds. ठीक है. और नंबर डी वाला ये हो गया टाइम और यहाँ पर हो गया वेलोसिटी. और यहाँ पर वेलोसिटी है 10, ये 0, ये हो गया 2 सेकंड्स, ये हो गया 4 सेकंड्स, ये हो गया 5 सेकंड्स, ये हो गया 10 सेकंड्स और यहाँ पर ये है मेरे पास -5. So these are the graphs which has been given. चलो फर्स्ट वन वाला बताओ 0 to 10 सेकंड्स के लिए. क्या हो जाएगा बेटा? सब कुछ ऊपर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? Same. Same. So distance will be equal to displacement. Displacement. So that will be what? Area of triangle. 50. ठीक है ना. So it is equals to half into 10 into 10. 10 into 10. So that will be equal to how much? 50 meters. नेक्स्ट वन देखो. 0 से 5 सेकंड्स तक एक ग्राफ है, फिर 5 से लेके 1 है. तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए. t is equal 0 से लेके t is equal 5 सेकंड्स के लिए एरिया क्या होगा बताओ? हाफ 25. कितना आ रहा? 10 into 25. that is equals to 25. Then t is equals to 5 से लेके 1 तक एरिया, ये a1 है मान के चलो, a2 है. So this will be equal to for me half into 9. कितना? 6 into 3. 3 into 6. Yes. तो कितना बना? 9. 9. 34 and 16. एरिया है ना, मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी मीटर्स नहीं होगा ऐसे नहीं.
So displacement कितना हो जाएगा? 16. Displacement will be 25 minus 9. That will be 16. 16. Distance कितना? Distance 34. 34 25 plus 9. plus 9. So that will be equal to 34 meters. बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो बाकी के Yes, दो sir. भी करके बता दो जल्दी से. पहले 0 से लेके 3 seconds, then 3 to 6, then 6 to 10, then calculate the area. Displacement 12. Displacement कितना आ रहा? 12. sir. T is equals to 0 से लेके T is equals to 3 seconds तक. एरिया कितना आ जाएगा? 3 5 15. 3. हाँ. अच्छा 5. 3 2. T is equals to कितना आ रहा? 6 seconds. तो एरिया कितना आ रहा? A2 A1 सब कितना आ रहा बेटा? 3 to 6. 3 3 9. 9. Then T is equals to 6 seconds to T is equals to 10 seconds. The area A3 will become how much for me? 4 into 3. 12. 4 3 12. 12. ये पूरा ऊपर का हो गया. Yes. तो नीचे का बताओ. डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 15. T is equals to 15 minus 9 plus सेकंड से के लिए 12. ये जो मैंने डॉट में ड्रॉ करा ना वही ग्राफ है. ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है. बाकी का पूरा डॉट है. यानी A2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? माइनस होगा ना ये. Yes, sir. So this will be minus 9 plus 12. Plus 12. 18. 18 meters. और डिस्टेंस कितना होगा? 36. Distance is equal Add to 15 plus 9 plus 12. 15 plus 9 plus 2. That will be equal to 36 meters. 36 meters. नेक्स्ट वाला बताओगे? T is equals to 0 से लेके T is equals to 4 seconds तक. एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा. 20. तो A1 is equals to कितना? हाफ into 10 into 4. 2 1s 10 are, 2 into 5s 4, are, 5 4s are 20. 20 समझो मीटर स्क्वायर. Then T is equals to 4 seconds to T is equals to 5 seconds. सही ना? कितना आ रहा? 15. 15 आ रहा? Yes. 15. पक्का? 15. Yes. कैसा? 6 into 5. कहाँ से? 6 into 5 into 1 by 2. 4 to 5 seconds. 6 into 4 to 10 seconds. हाँ, 4 to 10 ना sir. 4 to 10 seconds ले लो ना. अलग अलग करने की डायरेक्टली ले लो. 4 to 10 seconds ले लो पूरा. So कितना बन जाएगा? हाफ 15. into ले लो मैं. A2 is equals. This one is 5 into कितना? 6. 6. तो कितना आ रहा? 50. 50. ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट कितना बना? 5. Displacement will be equal to how much for me? 20 minus 15. So that will be 5 equal to 5 meters. So distance कितना बना? 35 35. meters. Isn't it? 20 plus 15. So that will be equal to 30. 35 meters. निकालने आ गया ना अभी? Yes, sir. क्लियर है? Yes sir. ये हो गया x versus t graph बेटा. और graph is given something like this. It is going from here to here like this. Then from here it becomes and it will go like this. This is your C and this one is your D and this one is your F. Okay, x versus t.
question is, the object has zero velocity at what position? First one is O, second one is C, third one is D, fourth one is F. ये हो गया O. The object has zero velocity where? D and O. D. D. O. जीरो वेलोसिटी कहां पर होगा बेटा? D. बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम वो, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर वो से स्टार्ट कर रहा हूँ. O and D. वो पे क्यों स्टार्ट? इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. Not starting. वो से स्टार्ट कर रहा है नहीं, ऑलरेडी यू वो के पास जो है ना इनिशियल वेलोसिटी यू है. और D, sir. स्टार्टिंग जर्नी फ्रॉम D, sir. Third D, sir. option. डी पे देखो, अगर मैं ऐसा एक स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ 0. तो क्या हो रहा है? पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस. Yes, sir. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. 0. जीरो. पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? Slope 0. सी के पास Greater. Decrease. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Decreasing. Decreasing. पॉजिटिव एंड Decreasing. Positive. Decreasing. पॉजिटिव है एंड इट इज Positive. Positive. Decreasing. Decrease हो रहा. इंक्रीजिंग. देन फाइनली जीरो. देन एफ के पास आने के बाद स्लोप क्या होगा? Decrease. यहाँ पर अगर मैं ऐसे टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो स्लोप क्या Negative. नेगेटिव है? Negative होती. नेगेटिव Greater than 90. 90 डिग्री आ रहा. ठीक है ना? Yes, sir. Sir. So it will be a negative. So object has zero velocity कौन से पोजीशन पे? D. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉडल और अच्छा वाला क्वेश्चन है. सी हाउ फार यू कैन एबल टू डू इट आउट. द गिवन ग्राफ, the given graph shows the variation of velocity with displacement. Velocity with displacement. Which one of the graph given below correctly represents the variation of acceleration with displacement. Acceleration with displacement. क्वेश्चन देखो इस तरह से है. This one is velocity and this one is x and the graph given for me is a straight line like this. So here velocity is v naught and here it is nothing but x naught. First option given is for me like this. This is your a, this is your x and the graph is like this. Second one is like this. This is your x, this is your acceleration and graph is a straight line like this. And third one is this one. This is x, this is your a and it is a straight line parallel to this one like this.
and fourth one is like this. This is x, this is your acceleration, and graph is like this, the slope down. Okay, so these are the given options. Now read the question carefully and see what exactly he is trying to ask. Third option. Hmm? Third option. Third option, right? First one, sir. First one. First one, right? The graph shows the variation of velocity with the displacement. Which one of the graph given below correctly represents the variation of acceleration with displacement? पहले फॉर्मूला बताओ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट का. V into dv by dx. A is equals to V into dV. dv by dx. This is the acceleration as a function of your velocity and x. ठीक है ना. तो अब ये ग्राफ में अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये पॉइंट कहीं पर ऐसा लिख लेता हूँ. तो यहाँ पर एक पॉइंट डाल लो ऐसा और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा. If it is making an angle theta here, so this is also making an angle theta. यहाँ पर कुछ velocity v हो जाएगी और यहाँ पर some position x और यहाँ पर some 0, some arbitrary. तो स्लोप कैसे लिख सकता हूँ, कोई बता सकता है इसमें? tan theta is equals to y by x. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v नॉट माइनस v डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? x नॉट माइनस ऑफ 0. so v 0 के पास वेलोसिटी कितनी है? ठीक है ना. ये वाला हो गया मेरे पास v नॉट माइनस v, ये हो गया v नॉट माइनस v डिवाइडेड बाय योर X 0. X. x नॉट है, x है सर, x है ना, x के लिए बात कर रहा हूँ ना मतलब. सॉरी, तो ये तो हो गया x के ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ना मैं. कहाँ गया x, ये भी हो गया Third x. option. चलो देखते हैं. और एक एंगल भी है tan थीटा, और एक tan थीटा क्या हो सकता है? Another tan theta is nothing but v minus 0 divided by this one is x naught minus x. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. दोनों की भी थीटा सेम है तो Yes, दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ. दो ट्रायंगल्स लिया ना बेटा मैंने, एक तो पूरा ट्रायंगल लिया और एक बीच का लिया. Yes, sir. तो अगर मैं दोनों की इक्वेट कर रहा हूँ यहाँ पर देखो क्या हो सकता है. v नॉट माइनस v डिवाइडेड बाई योर x इज इक्वल्स टू v बाई x नॉट माइनस ऑफ x. ठीक है ना. सो दिस वन इज v नॉट माइनस v इंटू ये हो गया x नॉट माइनस x इज इक्वल्स टू x इंटू v. लिख सकता हूँ मैं ऐसा. तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना बन जाएगा? v नॉट इंटू x नॉट माइनस v नॉट इंटू योर x माइनस v इंटू x नॉट माइनस माइनस ये हो गया प्लस. सो दिस वन इज v इंटू x इज इक्वल्स टू v इंटू x. ठीक है ना. तो ये कितना बन जाएगा मुझे? वेलोसिटी v निकालो, इसमें से वेलोसिटी v निकालो. कितना बनेगा? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? yes. क्या क्या कैंसिल होगा बताओ? Minus v naught x. X cancel. माइनस v नॉट X cancel. कहाँ पर है? ये माइनस दोनों माइनस है ना, कैसे कैंसिल होने चाहिए? कैंसिल होते क्या? v निकालना है मुझे खाली. v की वैल्यू निकालो इसमें से. X divide कर देना सर. हाँ तो हो जाएगा ना. सो अगर इसको V डिवाइड naught x naught minus v naught minus तो ये v हो गया x naught plus v. v नॉट माइनस ये हो गया v नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई योर x नॉट. ठीक है ना. आया सभी को?
Yes. तो ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी. dv by dx कितना आएगा बताओ? dv by dx will be equal to कितना होगा? ग्राफ में देखो, dv by dx is equals to minus of v naught divided by your x naught, क्योंकि थीटा इज राइट नाउ नेगेटिव ना. स्लोप समझ में नहीं आया? अरे जीरो से लेके y नॉट ये क्या है बेटा? ये पूरा वही है ना. Yes, यहाँ sir. से तक पूरा x है, Yes, sir. यानी y by x tan थीटा. tan थीटा इज y by x. स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, सो इट इज माइनस ऑफ v नॉट by x नॉट. tan थीटा इज व्हाट? dv by dx ओनली ना. Yes, sir. ये है समझ में. tan थीटा लिखो बेटा. tan theta is Yes, sir. Some. tan theta is nothing but dv by dx. From the graph it is minus of v naught by x naught. होगी बात. अब Yes. इसमें से कितना आ रहा? एक्सेलरेशन ये is equals to v into dv by your dx. v की वैल्यू आ गई v naught minus v naught into x divided by your x naught into dx. dx की वैल्यू कितनी आई? माइनस ऑफ v naught into your x naught. ठीक है ना. तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा देखो. या तो ये कितना बन जाएगा मुझे? v नॉट इंटू वी नॉट, ये हो गया v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर x नॉट माइनस ये हो जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाई योर x नॉट का होल स्क्वायर इंटू योर x. लिख सकता हूँ ऐसा? मल्टीप्लाई किया रखा था मैंने, बना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो ये हो गया एक्सिलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x का इक्वेशन. तो कंपेयर करो विथ y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट माइनस m इंटू योर x. ठीक है. x एक्सिस पे x है, स्लोप क्या है मेरे पास? ये वाला है, और कांस्टेंट क्या है? ये वाला है. कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. c वाली क्या है? V naught square by x. ठीक है. क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर? y इज इक्वल्स टू ये हो गया प्लस कांस्टेंट है माइनस ऑफ योर m इंटू योर x है. स्लोप नेगेटिव है ना. ठीक है. Yes, sir. तो कौन सा ग्राफ होगा जिसमें कांस्टेंट पॉजिटिव है? बताओ. कांस्टेंट किसमें पॉजिटिव है? इसमें तो कांस्टेंट नेगेटिव है, माइनस सी है. इसमें कांस्टेंट क्या है? प्लस सी है. इसमें माइनस सी है और इसमें भी माइनस सी. सो ओनली ऑप्शन व्हिच इज मैचिंग इज व्हाट? कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? Second option. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ट्राई करो. इसलिए मैंने करवाया. आप लोग बच्चे जनरली छोड़ देते हैं इसको, तो प्लीज ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन वंस अगेन. ठीक है. Yes, sir. इसके ऊपर आज मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा मैं आप लोग को. इक्वेशंस और ओनली ऑन द व्हाट यू कॉल दैट वन, क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन को छोड़ के जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के हम लोग ने फॉर्मूले करे ना उस पे वाले, और खाली ग्राफ का भी एक कोई पेपर होगा तो वो भी आप लोग खत्म कर लो एक बार. ठीक है. Okay, sir. ये क्वेश्चन एक बार जल्दी से टेक दिस वन एज एन होमवर्क. ये देखो, a point moves linearly with deceleration
with deceleration which is given by dv by dt is equals to minus alpha into root v, where alpha is a positive constant. Where alpha is a positive constant. So stop. At the start, v is equals to v naught beta. At the start, v is equals to v naught. The distance traveled by particle before it stops will be dash. First option is v naught to the power of 3 by 2 divided by 3 alpha. Second option is 4 v naught divided to the power of 3 by 2 divided by alpha. Third option is 4 v naught to the power of 3 by 2 divided by 3 alpha. And fourth one is 2 v naught to the power of 3 by 2 divided by 3 alpha. ठीक है, ट्राई करोगे? सर होमवर्क सेंड करना है सर? हाँ, होमवर्क आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड करना, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं मेरे पास, होमवर्क भेजते ही नहीं है मेरे सर करा मैं सर सेंड नहीं करे। करा सर सेंड। ग्रुप में भेजो ना तो। ओके सर। तो ग्रुप में आप लोग को ऑप्शन नहीं है शायद भेजने का। है सर है। ठीक है, तो भेज दो ना। ये क्वेश्चन भी देख लो, अच्छा है। द डिस्टेंस covered by a particle, varies with time as x is equals to k by b into 1 minus exponential to the power of minus b into t. Stop. The speed of particle at a time t is, I'll give the options for this one. First option is k exponential to the power of minus b into t. Second one is k b exponential to the power of minus b into t. Third one is k by b square exponential to the power of minus b into t. And fourth one is k by b exponential to the power of minus b into t. ठीक है? Now a question. If the velocity of a particle is given by v is equals to 180 minus 6x to the power of 1 by 2, ठीक है, meter per second, then its acceleration will be, first option is 0, second option is 8 meter per second square, third option is minus 8 meter per second square, and fourth one is 4 meter per second square. ठीक है ना? आराम से टाइम लगा के करो, प्रॉब्लम नहीं है। बाईपीसी बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत होगी, एमपीसी बच्चे तो आराम से खत्म कर ले सकते हैं। अगर बाईपीसी बच्चों को नहीं भी आ रहा तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोग को एक बार समझाता रहता हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज ट्राई टू गो थ्रू द डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक बार अच्छी तरह से, देन यू कैन डू इट ऑटोमेटिकली। नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल की क्लास में मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, चलो। यस, थैंक यू सर। बाय बच्चों। Hey.